हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा definition of loan, definition of advances and types of loan. Okay, now we will start with the next point, types of advances. Okay, before that just go through the definition and types of loan. Okay, what is the mean by loan? Loan is a money lent by bank to the borrower against the collateral security which is payable after specific period with interest. Okay, loan is money lent by bank. Okay, there are two parties, one is lender and second is borrower. The person who borrows money is known as a borrower. The person who lends the money is known as a lender. Okay, now the lender is a bank and borrower is a customer. Okay, against the collateral security. Collateral is an assets held by the borrower of the same value or the value as a amount borrowed. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि व्हाट इज द मीन बाय कोलैटरल असेट्स और कोलैटरल सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी हम लोगों को बैंक के पास रखनी पड़ती है फॉर द रीपेमेंट. जब तक हम लोग रीपेमेंट नहीं करते कुछ सिक्योरिटी, कुछ असेट्स हम लोग बैंक के पास रखते हैं, इज नोन एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी. ओके, नेक्स्ट इज एडवांसेस. फाइनेंस provided by bank to the companies, firm, etc. to meet their short-term requirements. Okay, companies or firms or any business organization की short-term requirements को fulfill करने के लिए जो फाइनेंस लगता है वो फाइनेंस बैंक प्रोवाइड करती है और उसको बोलते हैं एडवांसेस. ओके, लोन एंड एडवांसेस. लोन एंड एडवांसेस में बेसिक डिफरेंस इज लोन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, तीनों पीरियड के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं और एडवांसेस इज ओनली गिवन फॉर द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स. Okay, so next, types of loans and advances. Okay, types of loan: short term loan, secured loan and unsecured loan. हमने types of loan कवर किए लास्ट वीडियो में. आज हम लोग देखेंगे advances, types of advances, cash credit, overdraft and bill discounted. Okay, just take a overview of types of loan. Short term loan is given for the 15 months for the purpose of working capital needs and interest rate is applicable. Okay, term loan is a combination of medium and long term loan. Medium term loan is given for 15 months to 5 years. Long term loan is given for more than 5 years, that means 10 years, 15 years, 25 years, any more. The main purpose for a term loan is for heavy repairs, expansion, purchase of assets, machinery, furniture, etc. Higher interest rate is applicable as compared to short term. Okay, इंटरेस्ट रेट दिया जाता है तो वो हाई होता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म लोन. इट इज गिवन अगेंस्ट द कोलैटरल सिक्योरिटी. ओके, कोलैटरल सिक्योरिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मीडियम टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन की जो 15 मंथ्स और 5 ईयर्स मतलब यहाँ पर का जो पीरियड है वो पीरियड बहुत ज़्यादा है, इसके लिए उसका अमाउंट भी बहुत बड़ा होता है, इसीलिए कोलैटरल सिक्योरिटी इज मस्ट. ओके, द नेक्स्ट इज सेक्योर्ड लोन. ओके, द लोन विच इज गिवन अगेंस्ट द सिक्योरिटी. ओके, तो सिंपल वर्ड में आप अगर लिखना है लोन विच इज गिवन और द लोन विच इज ग्रांटेड अगेंस्ट सम सिक्योरिटी, अगेंस्ट सम कोलैटरल सिक्योरिटी इज नोन एज अ सेक्योर्ड लोन. ओके, यहाँ पे लिखा है अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ टैंजिबल एसेट्स. जिसका फिजिकल अपीयरेंस है जो हमें दिखते हैं इज नोन एज अ टैंजिबल एसेट, और उस असेट्स की अगेंस्ट जब बैंक लोन प्रोवाइड करती है इज नोन एज अ सेक्योर्ड लोन. ओके, और ऐसे असेट्स पे चार्ज क्रिएट किया जाता है like mortgage, pledge and hypothecation. Okay, in case of default, default का मतलब है in case borrower ने अगर repayment नहीं किया तो बैंक क्या करेगी, बैंक has a option to sell all that assets and recover his amount. Okay, बैंक को सारे assets sell करेगी और उसका amount क्या है, recover करेगी. So the secured loan is very important and very helpful for banks. Okay, next unsecured loan. Okay, secured की opposite आएगा unsecured. Secured में हमने देखा the loan which is granted against the security is known as an unsecured loan. Now what is the mean by unsecured? The loan which are not covered by the security, जहाँ पे कोई भी security नहीं रखी जाती is known as a unsecured loan. Okay, mostly जब personal type की loan दी जाती है, for example credit cards. Okay, आपको credit cards मिलता है मतलब कि आपको एक कार्ड मिलता है बैंक से, you can use that card while shopping or any purchasing anything. Okay, जब भले आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है, बैंक प्रोवाइड्स यू अ सर्टेन लिमिट ऑफ अमाउंट. फॉर एग्जांपल बैंक ने मुझे अलाउ किया 25,000 लिमिट है मेरे क्रेडिट कार्ड की. ओके, भले मेरे अकाउंट में 25,000 नहीं है, आई कैन यूज दिस क्रेडिट कार्ड एनीवेयर एंड आई कैन परचेस
आई कैन मेक द परचेजेस अप टू द 25,000. ओके, 25,000 में से मैं जितना भी परचेज करूंगी उतना अमाउंट मुझे क्या करना है, बैंक को रीपेमेंट करना है. ओके, दिस इज वन टाइप ऑफ लोन. क्रेडिट कार्ड इज वन टाइप ऑफ लोन एंड इट इज अनसेक्योर्ड बिकॉज बैंक मुझसे कोई भी सिक्योरिटी नहीं रख रहा है. मुझे नॉर्मल क्रेडिट कार्ड मिलता है, मुझे वहाँ पे मेरा घर, फर्म या एनीथिंग, मुझे बैंक को कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक के पास नहीं रखनी पड़ती. इट इज अ अनसिक्योर्ड लोन. ओके, द सेकेंड एग्जाम्पल इज एजुकेशनल लोन. जब आपको एजुकेशनल लोन लेना है, आपको सिंपली बैंक में जाकर अप्लाई करना है, आपके फी डिटेल्स बैंक को बताने, बैंक क्या करेगा, आपको लोन प्रोवाइड करेगा. वो अमाउंट जो फीस की अमाउंट है बैंक आपको प्रोवाइड करेगा. ओके, आफ्टर योर एजुकेशन एंड्स यू हैव टू रीपेमेंट ऑल द अमाउंट दैट बैंक गिव्स यू एज अ एजुकेशनल लोन. आपको जो एजुकेशनल लोन मिला है वो आपको बैंक को रीपेमेंट करना है. ओके, यहाँ पे कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं रखी जाती. एंड यस, यहाँ पे कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है, so the rate of interest of unsecured loan is higher than the secured loan. Okay, is that clear? Next, types of advances. हमने अभी types of loan देखी, अभी हम लोग देखेंगे types of advances. There are three types. First is cash credit, second is overdraft, and third is discounting of bill. Okay, discounting of bills of exchange. Okay, first is cash credit. Cash credit facility में क्या होता है? If you want cash credit facility, you have to go to bank, apply for the cash credit facility. Okay, क्या होता है, आपके नाम का एक सेपरेट अकाउंट बैंक में ओपन किया जाता है. जितना भी अमाउंट आपको चाहिए वो अमाउंट फॉर द शॉर्ट पीरियड. ओके, द मेन बेसिक थिंग इज फॉर द शॉर्ट पीरियड वो अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा एंड यू हैव टू कीप सम कोलैटरल सिक्योरिटी टू द बैंक. ओके, द कोलैटरल सिक्योरिटी कैन बी टेंजिबल एसेट्स सच एज स्टॉक, रॉ मटेरियल. जितना आपका अमाउंट है उतने अमाउंट का और हायर देन अमाउंट आपको क्या करना है, कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक के पास रखनी है. ठीक है, उसके अगेंस्ट आपको अमाउंट मिलेगी. यू कैन यूज दैट अमाउंट एंड आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड यू हैव टू रीपेमेंट इट विद इंटरेस्ट. उसको बोला जाएगा कैश क्रेडिट. तो कैश मिलती है क्रेडिट पे, क्रेडिट मीन्स उधारी, उधारी पे जब आपको कैश मिलती है वो प्रोसेस को बोला जाएगा कैश क्रेडिट. ओके, कैश क्रेडिट का जो इंटरेस्ट रेट है वो लोअर रहता है एज कम्पेयर टू ओवरड्राफ्ट. ओके, नाउ व्हाट इज द मीन बाय ओवरड्राफ्ट? Its name indicates itself overdraft. Means it is a process of overdrawing from your account. Borrower has right to withdraw more than balance in the account. Okay? यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताऊंगी. फॉर एग्जाम्पल, मेरे अकाउंट में है ₹6,000. 6,000 का बैलेंस है मेरे अकाउंट में, बट आई हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ ₹10,000 टू माई फ्रेंड. मेरे अकाउंट में सिर्फ 6,000 का ही बैलेंस है पर मुझे 10,000 का पेमेंट करना है. ओके, मैं क्या करूंगी, मुझे 4,000 का लोन तो नहीं मिलेगा, मैं बैंक में जाऊंगी और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए अप्लाई करूंगी. ओके, बैंक क्या करेगी, मुझे फॉर एग्जांपल एक सर्टेन लिमिट अप्लाई करेगी. फॉर एग्जांपल 50,000 की लिमिट है मेरी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है. आउट ऑफ द 50,000 आई कैन यूज दैट 4,000. ओके, मीन्स मेरा बैलेंस 6,000 प्लस 4,000 टोटल 10,000 मैं क्या करूंगी, बैंक मेरे थर्ड पार्टी को, मेरे जो फ्रेंड को मुझे पेमेंट करना है मैं कर सकती. ओके, इट नोन एज ओवरड्राफ्ट. मीन्स दिस द प्रोसेस ऑफ ओवरड्रॉइंग फ्रॉम योर अकाउंट. मेरे अकाउंट में भले उतना बैलेंस नहीं, बट आई कैन विड्रॉ मोर देन माई बैलेंस अमाउंट इज नोन एज अ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ओके, वो 4,000 रुपीज मैं क्या करूंगी, आफ्टर सम टाइम आई विल पे और आई विल रीपे इट टू द बैंक. ओके, विथ इंटरेस्ट. समझ में आया? बोरोअर हैज टू पे सम चार्जेस, मतलब मुझे बैंक को क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है क्योंकि मुझे बैंक के वो 4,000 रुपीज यूज किया. इज नोन एज अ ओवरड्राफ्ट. Just remember one line, that is overdrawing from the account is known as a overdraft. Okay, next the last point is discounting of bills. Okay, हमने bills of negotiable instrument में banking 1 में negotiable instrument में देखा था discounting of bills of exchange. और what is the mean by bills of exchange? Okay, in bills of exchange there are two parties, drawer and drawer. Okay, एक बहुत additional party वहाँ पे होती है बैंक. ठीक है, इन केस ड्रॉवर ने बोला कि आज मैं पेमेंट नहीं कर सकता, आफ्टर 6 months आई विल पे यू, बट ड्रॉवर को अभी अर्जेंसी है, उसको अर्जेंट पेमेंट चाहिए, तो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा. बैंक विल गिव हिम द अमाउंट अगेंस्ट हिज बिल, बट ही डिडक्ट सम अमाउंट, बैंक विल डिडक्ट सम अमाउंट एज अ चार्जेस. ओके, फॉर एग्जाम्पल बिल का अमाउंट है 5,000, बैंक पूरे के पूरे 5,000 पे नहीं करेगी, बैंक क्या करेगी 4,800 पे करेगी एंड 200 क्या होगा, बैंक के चार्जेस होंगे. इसको बोला जाएगा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. ओके, व्हेन द ड्रॉवर रिक्वायर्स अर्जेंट फाइनेंस
he can discount his bill with the bank. Okay, after the maturity date drawee has to pay the amount to the bank. ठीक है, आफ्टर द मैच्योरिटी बैंक को क्या करेगी, सारी अमाउंट मिल जाएगी जितनी बैंक में ड्रॉअर को पे की. ठीक है, दिस इज वन टाइप ऑफ लोन और दिस इज वन टाइप ऑफ एडवांसेस. ठीक है, बैंक क्या कर रहा है, बिफोर मैच्योरिटी कुछ अमाउंट कस्टमर को पे कर रहा है, दिस इज वन टाइप ऑफ एडवांसेस. और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है. मोस्टली हमने देखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5 years 6 years का नहीं रहता, इट इज 6 months 7 months 90 days 45 days. ओके, सो इट इज अ वन टाइप ऑफ एडवांसेस गिवन बाय बैंक. क्लियर है? इस वीडियो में हमने देखा टाइप्स ऑफ लोन एंड टाइप्स ऑफ एडवांसेस. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग. ओके, जब बैंक सम अमाउंट लेंड करती है या लोन प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को, देयर आर सम प्रिंसिपल दैट बैंक हैव टू फॉलो बिफोर लेंडिंग लोन टू द कस्टमर. ओके, हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ओके, टिल देन थैंक यू.